greet everyone in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Praise God. तो हम सभी लोग तो आज सुबह मैं क्या बताना चाहता हूं कि we all are the servants of God. We all are God's children and we have to fulfill His will in our life. Praise God. We are not it's not one man's business. It's an entire called out people's business to glorify the name of the Lord and to enrich the people with the knowledge which God has given to us. Hallelujah. आज सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम हैं, हम परमेश्वर की वचन की ओर हम अपने ध्यान को हम केंद्रित करें। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की वचन के सामने में हैं, हम अपने आप को हम समर्पण करते हुए हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहे। तो आज सुबह हम जब परमेश्वर की वचन के सामने में आए हैं, परमेश्वर का वचन का सबसे प्रमुख बात, when you study the word of God, the most important thing in the scripture is about eternity. It is because of eternity. No, eternity का यदि एक गोल नहीं रहता तो scriptures हमारे लिए जरूरत नहीं थी. Now, why scripture is in our hand? Because eternity matters. Right? अनंत काल मान्य रखता है, मायने रखता है, अनंत काल मायने रखता है, ये हमें समझना है. Eternity matters. तो eternity का एक लक्ष्य, eternity का एक गोल, every called out people have. Okay, when we say that we are called out people of God, when we say that we have been saved by the power of our Lord and Savior Jesus Christ, and we are saved from all sins, right? Every past sins has been washed away because of Jesus dying on the cross, and I am saved. I have accepted Jesus as my personal Savior. It's all because eternity matters. No, हम समझे हैं कहीं ना कहीं पर कि अनंत काल मायने रखता है, इसीलिए है ना, इसीलिए हम बोलते हैं कि I am saved. When I am saved, because there is an eternity. So I just want to remind this morning, हम सभी लोग जानते हैं, it's a very familiar thing. Normally we are not speaking on this particular thing because we know it. We as a Christian community, faith community, we have this knowledge about eternity. Right? Knowledge about eternity. But this morning, I just want to remind it from the scripture. So always it is good to remind. When you read the scriptures, everywhere you will see that God is reminding how God has delivered the people of Israel. This morning from Psalms number 95, when we were meditating, again, there is a reminding to the new generation, reminding to the people of the present time, right? How God has led. Now, what are the mistakes the God's people have done, and what all things we have to be very much careful about when we walk with God. So all reminders. Okay, Bible contains a lot of reminders. And this morning, in this 21st century, 2020, when we are in midst of COVID-19 situations and flood-like situations, natural calamities, war-like situations, in midst of every uncertainties. Okay, then again, the word of God is reminding something. So let us take this particular day as a reminder from the Lord. And once again, let us refresh ourselves with the concept of eternity. हमें परमेश्वर की उस eternity का concept को आज हम समझने की हम प्रयास करेंगे. Praise God. हम ये बहुत ही परिचित एक भाग में हम जा रहे हैं. We are going to look into a very familiar passage. When we are reading this passage, okay, we have to understand what is the real meaning which Jesus want to bring it out from that particular parable which Jesus is stating, and we are going to deal into that. This is going to be a great learning to each and every one of us, right? And I personally want, as I lead the church which God has given to me, a responsibility to take care of the God's people. So I personally want that nobody should miss that eternity. Okay, eternity with God. When I'm telling eternity, eternity is with God. That heaven, the concept of heaven, which Bible is telling that there is heaven, there is hell, number of passages in the Bible. I want that everyone should reach to that. And with that burden in my heart, this morning, let's go to
the reminders that we have already heard. Once again, remind ourselves, refresh ourselves, and be focused on that eternity concept when we are living the life in this earth. When God has given us a beautiful life, let us not miss out that eternity, the major concept which God wants from every one of us. So for the same, let's go to the passage. Let's go to Luke chapter 16, verses 19 to 31. I would request Sister Mary, if you can unmute yourself and read. Sister Mary से मैं अनुरोध करूंगा कि हिंदी में वो वचन को पढ़ करके हमें मदद करे, और हम उसमें से हम कुछ सीखने के लिए हम जा रहे हैं। यस पास्टर। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी टेड़वी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मारा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा से पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सारा हिस्सा और सारा सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, और परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है, परंतु तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से भी कोई भी जी भी उठे तो भी वे उसकी नहीं मानेंगे। थैंक यू सिस्टर। आइए हम परमेश्वर की ओर हम देखें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, ये वचन के पढ़े और सुने जाने से हमें तू आशीषित दे प्रभु जी। परमेश्वर, तेरे वचन जिस प्रकार से पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है प्रभु, वही अर्थों को आज सुबह हमारे सामने तू खुलासा कर प्रभु। हमसे तू बातें कर परमेश्वर, तू हमसे क्या चाहता है आज सुबह इस वचन के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। सारी महिमा गौरव आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज गॉड। नाउ दिस जब हम ये पैसेज को हमने देखा है, तो ये पैसेज जब हम पढ़े हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो धनवान व्यक्ति है वो स्वर्ग नहीं जाएगा, केवल गरीब व्यक्ति ही स्वर्ग जाएंगे, ये अर्थ नहीं है, राइट। ये अर्थ बिल्कुल ही नहीं है। मैं प्रारंभ में ये बताना चाहता हूं, बट उसके अंदर में प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा आत्मिक अर्थ को, नहीं तो उस स्वर्गीय अर्थ जो छुपा हुआ है वो उसको प्रकाश में प्रभु यीशु मसीह लाना चाहता है। तो आज हम उस समझ को हम समझने के लिए हम जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता है ये पैराबल से। सो व्हाट इज अ पैराबल? पैराबल इज ए अर्थली स्टोरी कंटेनिंग हेवनली मीनिंग। पैराबल क्या है? इस संसार की जो कहानियां जिसमें उस स्वर्ग की जो अर्थ छुपा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह उसके कॉन्टेक्स्ट में जो वहां की जिस प्रकार की रीति था, कहानी था, उस कहानियों को लेकर के, नहीं तो उसके सामने घटने वाली बातों को उस समझ करके, कहानी को बना करके प्रेजेंट करता था लोगों को, ताकि उनके कॉन्टेक्स्ट में ये समझ में आ जाए। लेकिन ये जब कहानी जब हम आज भी पढ़ते हैं, तो आज भी हमारे कॉन्टेक्स्ट में इस प्रकार के बहुत सारे हैं
बहुत सारे विषय को हम देख सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज सुबह जब हम इस वचन को हम ध्यान दे रहे हैं, इसमें से वो आत्मिक अर्थों को हम समझ पाए। लेकिन मुख्य उद्देश्य जो आज मैं इस वचन पर खड़े होकर के जो बोलना चाहता हूं, वो यह है कि नेवर लूज द इटर्निटी, उस अनंत काल की अवस्था को ना खोए। एक अनंत जीवन है, एक अनंत जीवन है। वी नो दैट देयर आर टू फेसेस इन एवरी ह्यूमन बीइंग। हर एक व्यक्तियों के जीवन में दो प्रकार का एक फेजेस है, दो प्रकार का एक जीने का तरीका है, न तो एक दो फेसेस है, दो क्षेत्र होता है हर एक व्यक्तियों के जीवन में। एक है द लाइफ ऑन अर्थ, जो अभी हम जी रहे हैं। अभी हम सभी लोग जो जीवित होकर के परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, हम सभी लोग वी आर लिविंग ए लाइफ ऑन अर्थ। दूसरा है द लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद में एक जीवन है। जब मृत्यु के बाद में जब जीवन बोलते हैं, उसकी दो शाखाएं हैं। मृत्यु के बाद के जीवन में दो शाखाएं हैं। एक शाखा जो है, एक ब्रांच जो है वो हेवन की ओर है, दूसरी ब्रांच जो है वो हेल की ओर है। तो हेवन और अर्थ इज अ रियलिटी, ये हमें समझना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन वो कहता है। आज मैं उस भाग में सारे आयतों को लेकर के हेवन की रियलिटी और हेल की रियलिटी मैं बताना नहीं चाहता हूं। इन दिस वर्ल्ड वी कैन लिव बाय एंजॉयिंग द डिजायर्स ऑफ द फ्लैश, बट आफ्टर डेथ ईदर देयर इज इटर्नल हेवन और इटर्नल हेल। तो इस संसार में हम जब जी रहे हैं, राइट, एक शारीरिक अभिलाषाओं से हम जी सकते हैं, राइट, लेकिन उस शारीरिक अभिलाषा में ही जीना नहीं है, नहीं, ये हमें समझना है। आज सुबह के समय पर जब हम परमेश्वर के वचन की ओर हम जब ध्यान दे रहे हैं, आइए हम इसकी कॉन्टेक्स्ट, इसकी बैकग्राउंड की ओर देखें इस पैसेज की। जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं, हम इसे 16वीं अध्याय को पूरी पढ़ना जरूरी है। केवल 19 to 31 पढ़ने से हमें समझ में नहीं आएगा। तो लेट मी ब्रिंग बिफोर यू व्हाट्स द बैकग्राउंड, व्हाई जीसस इज स्पीकिंग दिस पैराबल टू द पीपल ग्रुप। क्यों प्रभु यीशु मसीह ये पैराबल बोल रहा है, और क्यों लूक इसको यहां पर लिखने का उद्देश्य कर रहा है। हम जानते हैं कि लूक ये गॉस्पेल लिखा है, राइट। लूक जब गॉस्पेल लिख रहा है, उसके मन के अंदर में नो गॉड इज अ गॉड हु हेल्प्स द पुअर, वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट उसके अंदर में है। क्योंकि उस समय की जो सोशल स्ट्रक्चर को देख करके लूक जब गॉस्पेल लिख रहा है, ही इज टेलिंग दैट गॉड इज अ गॉड ऑफ पुअर ऑल्सो, इट्स नॉट ओनली फॉर द रिच। लोग उस समय पर सोचते थे, फैरिसी लोग खास तौर से सोचते थे कि रिचनेस इज ए ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, यदि वो रिचनेस है तो हम जरूर वो इटर्निटी में पहुंच जाएंगे। बट हियर लूक इज ट्राइंग दैट नो, दैट्स नॉट द केस। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ सम मटेरियल ब्लेसिंग दैट यू आर receiving, and it is from God itself. That doesn't mean that you will go to that eternity. It's not that, but we have to understand, no, but what is the core thing that will take us to the eternity. तो लूक पुअर को बहुत ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। When you read Luke chapter 4, Luke chapter 4, when Nazareth manifesto, प्रभु यीशु मसीह की जो नसरत मैनिफेस्टो जब हम देख सकते हैं, लूक चैप्टर 4, 18, 19 and 20, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर हुई है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाए जाए। तो वो प्रभु यीशु मसीह भी जब अपनी मिशन को जब चालू कर रहा है, उसकी प्रारंभ की स्टेटमेंट जो यशायाह नबी ने जो कहा था, उसको उल्लेख करते हुए वो अपने मिशन में इन्वॉल्व हो रहा है कि कंगालों को, the poor, to proclaim the gospel to the poor, कंगालों को परमेश्वर की उस सुसमाचार की घोषणा करने के लिए परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर में हुआ है, जो ओप्रेस्ड है उसे फ्री करने के लिए। तो इस प्रकार की एक मिशन जो प्रभु यीशु मसीह जो आरंभ किया है, लूक उसका उल्लेख कर रहा है। जब आप आगे पढ़ेंगे 6वीं अध्याय में जब आप आएंगे, तो वहां पर भी वो स्टेटमेंट 40 से लेकर जब आप पढ़ेंगे वो स्टेटमेंट्स, ब्लेसिंग स्टेट्समेंट में भी तो ब्लेस्ड आर द पुअर फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ गॉड। तो लूक उस प्रकार से प्रेजेंट कर रहा गोस्पेल को, गॉड इज अ गॉड ऑफ पुअर, पुअर इज नॉट नेग्लेक्टेड। इफ समवेयर द
poverty is there, so that doesn't mean that God has neglected those people. So वो एक उस कॉन्टेक्स्ट में उस प्रकार का एक बहुत बड़ा थॉट पैटर्न था। तो वहां पर लूक पुअर को सपोर्ट करते हुए इस गॉस्पेल को लिखते हुए हम इस पूरे गॉस्पेल जब हम पढ़ते हैं उसको हम समझ सकते हैं। दिस मॉर्निंग अभी ये जो पैराबल जब बोला है उसका कॉन्टेक्स्ट की ओर हम आए। जब हम 16th चैप्टर में हम जब देखते हैं, देयर आर टू पीपल ग्रुप टू हुम जीसस इज स्पीकिंग। वन इज टू द डिसाइपल्स ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले हैं, हो सकता है उसके साथ में जो 70 चेले जो उल्लेख किया गया है 10वीं अध्याय में, लूक 10वीं, वो भी शायद साथ में होंगे। सो जीसस इज स्पीकिंग टू द डिसाइपल्स, मे बी द 12 disciples, the main group, and then 70, the other, the spreaded group of disciples of Jesus Christ. So Jesus Christ is first talking to that we can read in chapter 16 verse number 1, जहां पर यीशु बोलता है, Jesus told his disciples there was a rich man whose manager was accused of wasting his possession. तो यीशु मसीह सबसे पहले चेलों से, राइट, चेलों से ये पैराबल्स को आरंभ कर रहा है। 16 का जब 1 से जब पढ़ते हैं वहां पर एक और पैराबल दिया गया है, जो एक रिच मैन था, एक मास्टर है और मास्टर का एक मैनेजर है, मैनेजर जो डिसऑनेस्ट मैनेजर है। तो उस जीसस वहां पर ये लेके आना चाहता है कि वी शुड बी वेरी मच फेथफुल व्हेन वी आर डीलिंग विद मनी मैटर्स, और वी शुड बी फेथफुल, वी शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट बट वी शुड बी ऑनेस्ट व्हेन वी आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल दो मनी मैटर्स थिंग्स। तो वहां पर वो उल्लेख करके प्रभु यीशु मसीह उस पैराबल्स को समझाना चाहता है चेलों से। जब वो पैराबल जब वो सिखा रहा था तो उसी बीच में एक दूसरा ग्रुप के लोग भी ये पैराबल सुन रहे थे, and they were Pharisees. Okay, they were Pharisees. So we can see that chapter 16 mein, Jesus started the parable speaking to the disciples. At the same time, when he was speaking that parable, there were also another group, and that group were the Pharisees. And Pharisees, they considered themselves as very pious, very religious, and they used to do all the religious things very perfectly. What is the law of Moses? What the prophets have spoken in the scripture, they take it very seriously, and they will outwardly reflect it that they are the real children of God, they are the children of Abraham. तो अपने आप को पायस, अपने आप को रिलीजियस प्रूव करने वाला एक ग्रुप वहां पर था, फैरिसी। तो उनसे भी प्रभु यीशु मसीह उल्लेख करते हुए, उनसे भी डिस्कशन में जाते हुए, जब हम 13th वर्सेस ऑनवर्ड्स जब हम पढ़ते हैं, 16 का 13 वर्सेस से जब हम पढ़ते हैं, हम उसको समझ पाएंगे, जहां पर वहां यीशु मसीह कहता है कि नो वन कैन सर्व टू मास्टर्स, ईदर यू विल हेट द वन and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and mammon, God or money. जो mammon है, that is a Latin word. कुछ versions में mammon दिया रहेगा, but that is a Latin word for the money. Money के लिए Latin word में इस्तेमाल किया गया है mammon को। फिर हम देखते हैं उसके बाद 14th verse में specifically the Pharisees who loved money heard all this and were sneering at Jesus. जो फैरिसीज जो थे, केवल वो धन के पीछे में भाग रहे थे, धन के पीछे में ही वो रिलीजियस एक्ट को जो कर रहे थे कि एनी हाउ वी वांट टू बिकम रिच। तो वो जब ये सारी बातों को सुन रहे हैं, वो अपने आप में बहुत गुस्से हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, और मजाक भी, प्रभु यीशु मसीह का मजाक भी वहां उड़ाते हुए उस सीन को लूक वहां पर प्रेजेंट करते हुए हम देख सकते हैं। सो जीसस वाज प्रोक्लेमिंग दैट वन शुड यूज द वेल्थ वेरी वाइसली। तो उतने भागों में जो 14th आयत तक हम ये समझ सकते हैं, जीसस वाज स्पेसिफिकली टॉकिंग दैट व्हेन गॉड गिव्स अस वेल्थ, जब संसार में परमेश्वर ने सबको वेल्थ दिया है, तो किस प्रकार से वाइसली हमें उस मनी मैटर्स में जाना चाहिए, वो सिखाते हुए हम देख सकते हैं। जब आगे जब पढ़ते हैं, when verses 13 onwards, when we read, Jesus is again addressing that there are three groups of people. Okay, there are again three groups of people.
Jesus is speaking to two groups of people, that is disciples and Pharisees. And then when he's speaking to these two groups, then Jesus is telling that in this world, or in that context of Israel where the gospel is being shared, when Jesus is ministering in Galilee and Judea, so there are three groups of people, right? In front of when they are serving the Lord, no, there are three groups of people they could see. The first group of people is who wanted to acquire money somehow. That is what we read in verse number 13 and 14. तो Pharisees को संबोधित करते हुए, hypocrites Pharisees को संबोधित करते हुए प्रभु यीशु मसीह कहता है किसी भी तरह पैसे कमाना है, किसी भी तरह, चाहे मेरे भाई हो, चाहे मेरे बहन हो, चाहे मेरे नेबर हो, चाहे मेरे कोवर्कर हो, उसको मैं बढ़ने नहीं दूंगा, लेकिन उसको मैं यूज करके किसी भी तरह मेरे पॉकेट के अंदर में पैसे आना चाहिए, मैं धनवान बनना है। तो वो मकसद से, लव ऑफ मनी, राइट? इट्स मनी इन इटसेल्फ इज नॉट रॉन्ग, बट द लव ऑफ द मनी, राइट? हम जानते हैं द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल इज लव ऑफ मनी, पॉल बोलता है आगे की उसकी जो लेखन में बोलता है। एंड हियर आल्सो जीसस की मिनिस्ट्री के दौरान लूक जब लिख रहा है, यीशु मसीह की इस मिनिस्ट्री को मुद्दे नजर रखते हुए वहां पर लूक भी यही बात को उल्लेख कर रहा है कि फैरिसीज जो थे, दे वेर इन द लव ऑफ मनी। सो एनी मीन्स के द्वारा, राइट, दूसरे को नीचे दबाते हुए, दूसरे को दबाते हुए, मैं उसे लूटते हुए मैं किसी भी प्रकार से धनवान बनूं। तो इसे एक दिस टाइप एक ग्रुप ऐसे भी थे जीसस की उस मिनिस्ट्री के समय में, 3.5 years की मिनिस्ट्री के समय में है, ये उल्लेख कर रहा है इस वचनों के द्वारा। तो सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल है वर्स नंबर 16 में देखते हैं, जहां पर परमेश्वर का वचन बोला जा रहा है, नो, लॉ इज बीन स्पोकन एंड प्रॉफिट is coming and telling to them। तो जब गॉस्पलाइजेशन हो रहा है, स्वर्ग के राज्य के बारे में बता रहा है, परमेश्वर की वचन की जब घोषणा हो रहा है, कुछ लोग हैं कि वो स्वीकार रहे हैं, some of them are receiving the word and want to walk in the path of eternity। उस अनंतता की मार्ग में चलने के लिए भी कुछ लोग रेडी हो रहे हैं। ये नहीं कि केवल ऐसे ही हिपोक्रिट के तौर से, कपट भक्ति की तरह से जी रहे हैं, साथ ही साथ में एक ग्रुप ऑफ पीपल है, एक रेमनेंट है जो कि परमेश्वर की वचन को ले रहा है, परमेश्वर को वचन को अपने पांव के लिए दिया बना रहा है, और उस वचन पर चलते हुए भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है। एंड देन थर्ड, ए ग्रुप एंजॉयिंग द फ्लैशली डिजायर और लस्ट ऑफ द फ्लैश। उसकी 18वीं आयत में जब हम पढ़ेंगे, वो वचन इस प्रकार से कहते हैं, एनीवन हु डिवोर्सेस हिज वाइफ एंड marries another woman commits adultery, and the man who marries a divorced woman commits adultery। So a perfect definition of adultery we can see. Maybe the world will give a lot of definition about adultery, but Jesus is giving a very perfect definition, and I think that we should also be very much taking this definition which Jesus is giving about adultery। He's telling that यदि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को डिवोर्स करता है और दूसरे एक स्त्री से मैरी करता है, वो अडल्ट्री कर रहा है। साथ ही साथ में, and if a man who marries a divorced woman, और एक व्यक्ति, एक मनुष्य यदि डिवोर्स्ड वुमन से शादी करता है, वो भी अडल्ट्री। वाइस वर्सा, केवल मैन के लिए नहीं, वुमेन के लिए भी वैसे ही, राइट। तो यीशु मसीह वहां पर एक अडल्ट्री का एक डेफिनेशंस भी दे रहा है। यीशु मसीह क्या बताना चाहता है कि फैमिली लाइफ में मोरालिटी नहीं है, right? When God has instituted the family, in that family उस morality को keep up करने के लिए लोग तैयार नहीं है। So that was the context when Jesus is speaking this particular parable of the rich man and the poor Lazarus। So 3 groups of people उस समय पर, यीशु मसीह के समय पर था, और उसको आगे उल्लेख करने के बाद में ये पैराबल को रिच मैन का और पुअर लाजरस का वो जो पैराबल है वो बोलने के लिए आरंभ कर रहा है। आशा करता हूं कि आपको ये बैकग्राउंड आपको समझ में आ रहा है। See, God is very much concerned about the morality. God is concerned about the
क्वालिटी। ना परमेश्वर को क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। गॉड इज ऑलवेज लुकिंग फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु विल हैव दैट क्वालिटी इन द वर्ड ऑफ गॉड, स्टैंडिंग इन दैट वर्ड ऑफ गॉड एंड लीडिंग द लाइफ। इट इज नॉट दैट एनी वे, किसी भी तरह से जीवन को जीने के लिए उल्लेख नहीं करता है पवित्र शास्त्र। परमेश्वर का किंगडम प्रिंसिपल्स है, परमेश्वर का राज्य का कुछ सिद्धांत है, वो रिवील किया गया है मनुष्यों के लिए। उस किंगडम प्रिंसिपल को इस संसार में जब हम रहते हैं, उसको समझते हुए, जो पैराबल्स के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, उसकी टीचिंग के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, लेटर्स के द्वारा पॉल ने चर्च के लिए जो दिया है, वो सिद्धांतों के अनुसार से चलने के लिए नए नियम के विश्वासियों के लिए आज सुबह पवित्र आत्मा हमें रिमाइंड करना चाहता है। प्रेज़ गॉड, हम भटके नहीं, हम संसार को देख करके उस हिसाब से हम भटक के ना जाए, लेकिन किंगडम प्रिंसिपल्स में रह करके हमारे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, जीना है। ये एक रिमाइंडर के तौर पर हम आज सुबह के समय पर हम ले। सो जीसस इज प्रोक्लेमिंग टू द फैरिसीज, हिपोक्रेट, दैट यू कैन नॉट अटेन इटर्निटी। ऐसे लोग जो फैरिसीज जो है, जो वहां पर बुड़बुड़ा रहे हैं, जो मजाक उड़ा रहे हैं, उनको देख करके प्रभु यीशु मसीह पैराबल बोलना चाहता है और कहता है कि ऐसी सब जो मनोभावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए अनंत काल नहीं रखा गया है। वो अनंत काल में प्रवेश नहीं करेंगे। अनंत काल मायने रखता है। आज सुबह के समय पर हम ये समझे और हम इस वचन की ओर हम आगे बढ़े। अभी लेट्स कम टू दिस पैराबल। हम इस पैराबल में हम आए, यहां पर हम एक रिच मैन को देख सकते हैं जिसका नाम नहीं बताया गया है, लेकिन पुअर जो बेगर है उसका नाम बताया गया है। I don't know why Jesus is doing that, but anyhow इसे जनरलाइज करके प्रभु यीशु मसीह कहानी को बताया जा रहा है, लेकिन पुअर मैन का नाम दिया गया है, नाम दिया गया। मैं जब इसको मनन कर रहा था, आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, मैं इस प्रकार से सोच रहा था कि शायद लाजरस का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, उसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो नाम को उल्लेख कर रहा है। नो, जिसका नाम परमेश्वर उस पुस्तक में लिखा नहीं गया है, वो अग्नि में डाला दिया जाएगा। तो शायद आई डोंट नो वेदर इट इज दैट्स द राइट इंटरप्रिटेशन और नॉट, बट इट्स a thought which came to me while I was reading that why Jesus is telling that poor beggar's name, but he is not using the name or not giving any name to this rich man. He is generalizing it. So in them, when we look onto their lives, in them there are few differences. ओके, उनके जीवनों को जब हम देखते हैं, उनकी पूरी कहानी जन्म से लेकर के उस अनंतता तक पहुंचने की जो जीवन को हम देख सकते, बहुत सारा डिफरेंसेस इन दोनों में हम देख सकते हैं। सो इन लाइफ व्हेन दे वर लिविंग इन दिस अर्थ, देयर वर डिफरेंसेस। ओके, हम जब वो वचन को पढ़े हैं, उसमें पढ़े और सुने जाने से हमें समझ में आया होगा कि इन लाइफ में उनको डिफरेंसेस था, इन डेथ में भी उनको डिफरेंसेस था। जैसे उनको मृत्यु के बाद में जो दफनाने का जो रीति है, उसमें भी डिफरेंसेस उसको हम देख सकते हैं। और इटर्निटी में जब वो अनंतता में जब पहुंच गए हैं, वहां भी एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस, एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिनको जो से वो डिवाइड कर रहे हैं। संसार में एक साथ रह रहे थे, लेकिन वहां पर उस अनंतता में पहुंचने के बाद में एक साथ नहीं रह पा रहे, वहां पर एक डिविजन हो रहा है, बीच में एक गड्ढा है। ना तो उधर से नित्य अग्नि से ना तो कोई स्वर्ग की उस जगह पर आ सकता है, ना तो स्वर्ग की उस जगह से, अब्राहम की गोद से, ना ही उस हेडिस में कोई जा सकता है। राइट, वो बातों को हम वहां पर देख सकते हैं। हम आगे बढ़े। सो व्हेन पीपल, लेट्स लुक ऑन वन बाय वन। जब लोग ये लाजरस को जब देख रहे हैं, राइट, ये पुअर मैन जो लाजरस जो इस रिच मैन के गेट के पास में पड़ा हुआ है, जब लोग उसको देख रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो उन्हें लोगों को क्या पता, लोग किस प्रकार से देख रहे हैं? द अर्थली लाइफ वाज टेरिबल एंड हॉरिबल। ये लाजरस का जो संसारिक जो जीवन था बहुत ही बेकार था ना, उसको कोई देख नहीं सकता था, बहुत ही हॉरिबल तरीके से उसका जीवन जी रहा था। उसको हम जो पढ़ सकते हैं कि एट द गेट लेट द बेगर नेम लाजरस कवर्ड विद सोर्स। वो फिजिकली वो बहुत पेनफुल अवस्था से जा रहा है, शरीर में बहुत सारे घाव है, बहुत सारे वुंड्स है जो कि वो हील नहीं हो रहे थे, उसमें से लगातार पस निकल रहा था। वो एक अवस्था हम यहां पर हम देख सकते हैं। एंड लॉन्गिंग टू ईट व्हाट फेल फ्रॉम रिच मैन्स टेबल।
तो हमेशा वो चाहता था कि वो रिच मैन की जो टेबल से गिरने वाला जो ब्रेड है वो उसे मिले, तो उसकी ओर ताकते हुए, मतलब कोई भी लोग इसे खाने से मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है, तो ही वॉज इन ए हंगर स्टेट। उसका बेसिक नीड जो है वो फुलफिल नहीं होते हुए हम देख सकते हैं। जैसे हम जानते हैं रोटी, कपड़ा, मकान जो हम बोलते हैं, जो बेसिक नीड है, वो बेसिक नीड भी ये व्यक्ति को पूरा नहीं हो रहा है, जो कि हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि बेसिक नीड उसके पूरे हो, राइट। तो वो भी पूरा नहीं होते हुए उसके जीवन से हम देख सकते हैं। और उसका कोई फ्रेंड्स नहीं था, नो वन वॉज रेडी टू बिलोंग विथ हिम ना। हम सभी लोग चाहते हैं कि हम फ्रेंड्स के साथ में हम एसोसिएट करें, हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ में हम एसोसिएट करें, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हम उनके साथ में मिंगल करें। बट ये जो व्यक्ति है, ये जो लाजरस जो है, उसको एक बिलोंगिंग नीड भी उसे फुलफिल नहीं हो रहा है। लोग जब उसके सामने से होकर निकलते हैं तो उसे देख करके मुंह फेर देते हैं, इतनी दुर्गंध आता है कि उसके पास में कोई एसोसिएट नहीं करना चाहता है। सो उसका सर्वाइवल नीड्स पूरा नहीं हो रहा है, उसका सेफ्टी नीड्स पूरा नहीं हो रहा है, उसका बिलोंगिंग नीड्स पूरा नहीं हो रहा है, उसको सोसाइटी में रिकग्निशन नहीं है, उसको एक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड लाइफ जीने की कोई भी तरीके से क्षमता नहीं है। सो मैं जब ये सारी बात बोल रहा हूं, आई एम कीपिंग इन माय अब्राहम मैस्लो का पर्सनालिटी नीड थ्योरी मेरे मन में है जब मैं इस व्यक्ति को इवैल्यूएट कर रहा हूं। क्योंकि पिछले हफ्ते ही मेरे स्टूडेंट्स को मैंने अब्राहम मैस्लोस का पास्टर्स सेल्फ इमेज अंडरस्टैंडिंग पीपल के बारे में जब सिखा रहा था, तो अब्राहम मैस्लोस का ट्रायंगल हायरार्की में जब सिखा रहा था, तब उसमें से राइट कुछ बातों को इन दोनों के जीवन से मुझे इवैल्यूएट करने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कृपा दिया। तो अब्राहम मैस्लो जो थियरी बनाया था पर्सनालिटी नीड के लिए, मोटिवेशन के लिए, कि एक व्यक्ति यदि मोटिवेट होना है तो ये सारी चीजें जरूरत है, राइट। उसकी सर्वाइवल नीड्स की जरूरत है, सेफ्टी नीड्स जरूरत है, बिलोंगिंग नीड्स की जरूरत है, सेल्फ एस्टीम जरूरत है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक व्यक्ति की उच्चतम लेवल, उसका ड्रीम्स फुलफिल होना, ये सारे लोगों में इस प्रकार के एक नीड्स का पूर्तिकरण होना है। लेकिन ये व्यक्ति को जरा देखे, लाजरस को जरा देखे, जो प्रभु यीशु मसीह कहानी जब बोल रहा है, इस व्यक्ति उस पर्सनालिटी नीड के कहीं पर भी आते हुए मैं नहीं देख सकता। तो यहां पर उसकी जो लाइफ था, एंटायर फिजिकल लाइफ ऑन दिस अर्थ वाज कंप्लीटली टेरिबल एंड हॉरिबल, राइट। और उसके बाद उसके डेथ में हम जरा देखें, जब उसको मृत्यु हुआ, हम यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, हम आगे जब पढ़ेंगे उसकी 22वीं आयत से, वहां पे लिखा द टाइम केम व्हेन द बेगर डाइड एंड द एंजल कैरिड हिम टू अब्राहम्स साइड, द रिच मैन आल्सो डाइड एंड वाज बरीड। तो पहले लाजरस मरते हुए हम देख सकते हैं, right? When Jesus is telling the story, in that story पहला डेथ किसका हुआ? लाजरस का हुआ, ये पुअर व्यक्ति का हुआ ना। ये जो व्यक्ति जो पहले मरा था, तो ये इसका मृत्यु कौन देखा है? ये रिच मैन भी देखा है। अब ये जो मृत्यु जो इसका हुआ है, हम जान सकते हैं कि इसकी मृत्यु के उस फ्यूनरल सर्विस में कोई भी अटेंड शायद ही किया होगा, राइट। एक सोशल डिस्टेंसिंग की तरह होगा। मैं इस वचन को जब पढ़ रहा था, जब एक व्यक्ति को कोविड-19 होकर के उसकी मृत्यु होता है, तो उसके डेड बॉडी उसको फैमिली मेंबर्स को भी डॉक्टर्स देते नहीं है, राइट। देने से, और नहीं तो वही लोग, कुछ लोग 5 या 6 लोग मिलकर के जाकर दफनाते हैं, विद तो पूरा किट को पहनते हुए, राइट, पूरा सेफ्टी को मेंटेन करते हुए उनका फ्यूनरल सर्विस होता है। तो ठीक उसी प्रकार से शायद ये लाजरस का भी फ्यूनरल सर्विस होगा। एक बड़ा एक सेलिब्रेशन नहीं हुआ होगा उस फ्यूनरल सर्विस में। मैं क्यों इस प्रकार से बोल रहा हूं? जब आजकल जब हम फ्यूनरल सर्विसेज जब देखते हैं, स्पेशली इन केरला, जब हम देखते हैं कोविड-19 से पहले लाखों रुपया खर्च करते हैं एक फ्यूनरल सर्विस के लिए, राइट। और जितना भी लैविशली, जितना भी हम कर सकते हैं एक व्यक्ति को विदा करने के लिए, उतनी सारी तरीके से करते हैं। So I was just thinking and reflecting our social context also when I was reflecting from this particular passage. कितने relevant सी बात है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो इसमें से बताना चाहता है हमसे कि ये जो इसका डेथ में he didn't got the good burial,
people around him was happy that he died and no one to mourn for him. ना उस समय पर जब एक व्यक्ति मर जाते हैं तो काफी लोग रोने के लिए उन्हें बुलाया जाता है, with paid mourners, right? दुख मनाने के लिए पैसे दे करके लोगों को लाया जाता था। जब हम लाजरस, मार्था मरियम, जब लाजरस मर गया तो वहां पर रोने वाले काफी लोग थे, काफी लोग आए हुए थे इनके साथ में दुख मनाने के लिए। और जो इस कॉन्टेक्स्ट में उस समय पर पेड मोर्नर्स मिलता था, उन्हें पैसे दे करके उनके दुख में रोने के लिए लोगों को बुलाया जाता था। लाजरस को उस प्रकार से कुछ भी उस प्रकार का एक फ्यूनरल सर्विस उसे मिला नहीं। लोग सब बोल रहे थे अच्छा हो गया, चलो अभी तो दुर्गंध नहीं होगा, जब हम इस रास्ते से जाएंगे अभी दुर्गंध नहीं होगा, अभी इसे देखना नहीं पड़ेगा, चलो अच्छा ही हुआ कि उसकी मृत्यु हो गया है, राइट? और उसका, लेकिन हम उसकी जब इटर्निटी देखते हैं, सो वी आर लुकिंग ऑन टू द 3 पार्ट्स। ओके, उसके फिजिकल लाइफ में बहुत ही टेरेबल और हॉरिबल था। उसकी मृत्यु को जब हम देखते हैं, एक अच्छा बरियल सर्विस उसे नहीं मिला। जब हम उसको इटर्निटी को देखते हैं, बिग कॉन्ट्रास्ट, जो हम शरीर में जो हम उसे देख रहे हैं, लेकिन इटर्निटी में उसकी अवस्था एक अलग है, राइट? वहां पर ना तो उसके शरीर में सोर्स है, ना तो उसको दुर्गंध है, वो एक लाइट में, प्रेज गॉड, वो अब्राहम की गोदी पर ना वो बैठा हुआ, अब्राहम की साइड में वो बैठा हुआ, उस प्रकार से ये कहानी हमें यहाँ बताते हुए हम देख सकते हैं। तो ये है लाजरस का जो 3 एरियाज, जो लाइफ का, जो उसकी जो फिजिकल लाइफ, उसकी डेथ और उसकी इटर्निटी का जो वर्णन हम इस भाग से देख सकते हैं। सो व्हेन पीपल लुक्ड एट रिच मैन, जब हम उस धनवान व्यक्ति के ओर जब लोग देखते हैं, सो मोस्ट ऑफ द पीपल माइट हैव अप्रिशिएटेड हिज लाइफ, राइट? क्योंकि उसकी जो रहन सहन, सोशल स्टेटस, उसका जो अब्राहम मैस्लो को अगेन हम लेने से, राइट, उसका सर्वाइवल नीड्स तो कब से ही पूरा हो चुका है। सेफ्टी के लिए उसके लिए बॉडीगार्ड्स हमेशा उसके साथ चलते हैं, राइट? बिलोंगिंग नीड्स के लिए सोसाइटी के सारे लोग, और उसका जो पोजीशन है सोसाइटी में, इट इज हम उसको वर्णन नहीं कर सकते, इज अ रिनाउंड पर्सन इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी और कम्युनिटी, हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ में जब उसका बरियल हुआ, तो बरियल में भी वो काफी जबरदस्त तरीके से वो बरियल हुआ है। हम जानते हैं रिच मैन का जब बरियल होता है, सारे उसके भाई लोग आए, फैमिली मेंबर्स आए, उसमें पार्टिसिपेट किए, सोसाइटी लोग आकर के पार्टिसिपेट किए, जो सोशल स्टेटस का उच्च लेवल में जो रहते हैं, शायद मंत्री लोग वहां के, वो लोग भी आकर के इसके फ्यूनरल सर्विस में पार्टिसिपेट किए होंगे। काफी लोग बोल रहे होंगे कि इस लाइफ में इसने सब कुछ प्राप्त किया। तो लोगों की नजरिया है कि ही हैड ए वेल लाइफ, वेल लिव्ड लाइफ, बहुत ही अच्छी तरीके से इसने एक अपना जीवन को पूरा किया, पूरे परमेश्वर के आशीषों के साथ में उसने जीवन को पूरा किया। शायद उस प्रकार का एड्रेस उसे मिला होगा उसके फ्यूनरल के समय में। सो इन हिज डेथ ही गॉट द बरियल विद हिज फैमिली एंड कम्युनिटी अराउंड हिज बॉडी, paid mourners to weep for him. लेकिन इन इटर्निटी, जब इसकी इटर्निटी में जब हम देखते हैं, इस लाइफ वाज इन एगनी, इस लाइफ वाज इन एगनी। हम वहां पर उसकी 24th का लास्ट पार्ट जब हम पढ़ेंगे, वहां पर वो खुद बोलता है, बिकॉज आई एम इन एगनी इन दिस फायर, इस जो आग में, जो ये आग की झील मेरे जो चारों तरफ है, यहां पर मैं काफी दुख में हूं, दर्द में हूं, मैं हेडस में हूं, मैं परेशान में हूं। So how, we have to look on to these 3 aspects, very and we have to understand it very clearly, right? किस प्रकार से लाइफ को जीना है। See, again, I am telling that it is the life is very much important. Life is a gift of God. इस लाइफ में परमेश्वर की उस प्रिंसिपल्स के अनुसार से जीना है। हमारी जो अनंतता है वो हमें नाश नहीं होना है। ये बोध के साथ में, ये कॉन्शियसनेस के साथ में हमारी जीवन जीना है। ये प्रभु यीशु मसीह इस पैराबल के द्वारा बताना चाहता है, राइट? नाउ सी द डिफरेंसेस, राइट? डिफरेंसेस भी हम उसके जीवन को हम देख सकते हैं कि इनके ड्रेसेस में डिफरेंसेस था, खाने में डिफरेंसेस था, देखिए रिकॉग्निशन में डिफरेंसेस था, राइट? मैंने ऑलरेडी बोल दिया, सिक्योरिटी और बिलोंगिंग नीड, सोशल लाइफ में डिफरेंसेस था, और उसकी ड्रीम्स में भी,
नो वहां पर डिफरेंसेस था, हम देख सकते हैं। ये जो पुअर व्यक्ति है वो कभी भी ना उसका पूरा उसका ड्रीम्स का शायद वो फुलफिल नहीं किया होगा, लेकिन उसके मध्य में एक बात हमें समझना है, ही हैड ए कॉन्शियसनेस ऑफ द इटर्निटी, राइट। उसके उसके मन के अंदर में एक अनंत काल का एक विषय उसके अंदर में था, जिसके कारण से वो वहां पहुंच पाया, पर अब्राहम के साइड पर वो पहुंच पाया। लेकिन ये जो रिच मैन था, इस रिच मैन के मन के अंदर में इटर्निटी का कॉन्शियस नहीं था। बिना इटर्निटी के कॉन्शियस से जो लाइफ उसे दिया गया है, लाइफ में उसे जो कुछ रिकॉग्निशन मिला है, अप्रिसिएशन मिला है, अप्रूवल मिला है, ब्लेसिंग्स मिला है, जो भी उसे मिला है वो उसमें ही तृप्त होकर के रह गया। No, we have to be very much careful this morning when we are listening to this word of God. It's not talking about any rich people or poor people. It is talking about the life that we have to live when God has given us a life as a gift. ये लाइफ जो गिफ्ट जो परमेश्वर की ओर से मिला है, इस लाइफ को वेरी कॉन्शियसली हमें लीड करना है ना। दिस इज ए रिमाइंडर, हमें भटकना नहीं है, हमें वापस वो किंगडम प्रिंसिपल्स में स्थिर होना है। दिस मैसेज आई एम नॉट स्पीकिंग टू ए चर्च अलोन, बट एज एन इवेंजलिस्टिक मैसेज व्हेन इट विल बी इन द फेसबुक और whoever is hearing, as an evangelistic message to all around the world. I just want to address this morning, our life is very important in the sight of God. We cannot live a life as we want. There is a kingdom principle that we have to follow. Jesus has given us that kingdom principles. He have shared through the parables how the kingdom of God looks like. What is about the kingdom of God? We have to understand that in this kingdom of God, the principles which God has given us in this world, God will give us riches. God will give us every benefits. Lord, God will give us status. God will give us recognition. But this is for the glory of God. Hallelujah. And I am so happy this morning, and I love all my church members this morning. Why I have taken this? Just to encourage you this morning that whatever you are doing, or whatever the sacrificial thing that you are doing for the kingdom of God, when God has blessed you, you are not keeping it for yourself, but you are channelizing it for the glory of God. Let the name of the God be glorified. Hallelujah. Praise God. मैं आपको बताना चाहता हूं, this is what God is expecting from disciples community, and we are doing it. Hallelujah. Now पिछले दिनों को हम यदि स्मरण करें, now when I was talking with Jason about it, how the church is helping us in the kingdom of God, in the ministry of God, in the work of God, how we are in the kingdom principles, and now I was so glad. Hallelujah. Har ek families, no, they are participating in the kingdom principles. Now that is what we need, and God is so much happy about it. Amen. Praise God. Hallelujah. Lord, when we are concerned about others, we never neglect anyone. Whoever is coming with that concern, with those who want the care, God has helped us. God has given us that blessing to care about that. Hallelujah. No family, एक family, church के एक family दूसरे family के लिए care कर रहे हैं. Praise God. No दूसरा family तीसरे family के care कर रहे हैं. किसी को avoid नहीं करना चाहते हैं. सबको परमेश्वर की राज्य की उस प्रेम में, परमेश्वर जो हमें दिया है उससे हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस्तेमाल करने के लिए हम तैयार बंद व्यक्ति लोग हैं। आज सुबह मैं ये संबोधित करना चाहता हूं। प्रेज गॉड। हालेलुया। नाउ ये कहानी जब हम पढ़ रहे हैं, राइट, वी हैव टू थिंक दैट देयर इज एन इटर्निटी। हालेलुया। एक अनंतता परमेश्वर मेरे लिए आपके लिए रखा हुआ है, और वो अनंतता इस लाइफ में हमें वो सिक्योर करना है। उस अनंतता हमें इस लाइफ में सब्सक्राइब करना है। प्रेज गॉड। हमें उसे सब्सक्राइब करके हमें आगे बढ़ना है। ये वचन परमेश्वर आज हमें, मुझे और आपको ये बताना चाहता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। अभी हम यहां पर हम देखें, जब वो इटर्निटी में पहुंच गए हैं, when I'm talking about this eternity, we have to understand that eternity is the reality. वो इटर्निटी जो है वो एक रियलिटी चीज है। प्रभु यीशु मसीह ने ये संबोधित किया है। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, व्हाट डज इट से? फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगोटन सन, दैट whosoever believes in him will not perish but will have eternal life.
राइट। तो प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना उस अनंत जीवन का गिफ्ट के तौर पर लोगों को देने के लिए है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ये लाइफ जो परमेश्वर दिया है, वो लाइफ से परमेश्वर हमें एक इटर्निटी देना चाहता है। नो, ये लाइफ जो कि पाप के कारण से जो इटर्निटी जो परमेश्वर के साथ में जो मिस आउट हो गया था, प्रभु यीशु मसीह उसे रिस्टोर कर रहा है। एंड थैंक्स बी टू गॉड फॉर सेंडिंग जीसस क्राइस्ट 2000 years ago, so that today we have come to the knowledge of that eternity and we could secure that eternity. Hallelujah, praise God. So every worship that we do unto God, it is only because we have secured the eternity of God. Amen, praise God. जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर के लोगों के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में आके प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सभाओं में आते, हम क्यों आते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि वी हैव सिक्योर्ड आवर इटर्निटी। हालेलुया। आज यदि उस इटर्निटी का वो कॉन्शियसनेस नहीं रहता, हम कभी भी जूम में हम आते नहीं। हालेलुया। यदि इटर्निटी का कॉन्शियसनेस हम में नहीं रहता, तो हम जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं 15 घंटा 16 घंटा, फिर भी सैटरडे के दिन में फिर से 15 घंटा परमेश्वर के राज्य में आकर परमेश्वर की राज्य की महिमा के लिए हम वर्कआउट नहीं करते। प्रेज गॉड। Why we are all doing all those things? It is because that there is an eternity. Hallelujah. Right? यदि वो eternity का concept भी हमारे हृदय के अंदर नहीं रहता, हम वो नहीं कर पाते। तो इस लाइफ में, not as an evangelistic message to everyone all around the world, no one has to secure his or her eternity. Hallelujah. वो व्यक्तिगत है। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब अब 25वीं आयत से जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। राइट, वहां पर 23 से जब हम पढ़ते हैं, in Hades where the rich man was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So he called to him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire. Praise God. Right? वहां पर क्या बोल रहा है? वो एक प्रार्थना रिक्वेस्ट रख रहा है। right? यहां पर कभी प्रार्थना नहीं किया। राइट, जब वो संसार में था कभी भी फादर अब्राहम से प्रार्थना नहीं किया होगा, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया होगा। लेकिन जब वो हेडिस में पहुंचता है, जब वो अधोलोक में जब वो पहुंच गया, जब वो देखा कि लाजरस वहां पर अब्राहम के साइड में है, अभी वो अब्राहम से प्रेयर रिक्वेस्ट देने जा रहा है। वो कह रहा है कि फादर अब्राहम हैव पिटी ऑन मी, मुझ पर तरस खा। एक बात हमें समझना है, प्रार्थना इस संसार में है। हालेलुया। इस लाइफ में ही हम प्रेयर कर सकते हैं। वहां जाकर के हम जितना भी प्रार्थना करें उसका कोई भी फायदा नहीं है। ये रिच मैन वो भूल गया, वो अपने जीवन को बनाने के लिए उस जीवन की उस बहाव में, उसके ड्रीम्स की फुलफिलमेंट में वो सब कुछ भूल गया परमेश्वर के विषय में। लेकिन जब वहां इटर्निटी, उस इटर्नल उस अग्निकुंड के पास में जब पहुंचा, हालेलुया, तब उसे प्रार्थना की बात याद आया। हालेलुया, कि उसको रिक्वेस्ट करना है, हैव पिटी ऑन मी। सी द प्रेयर हैव पिटी ऑन मी इज ऑन दिस अर्थ। Amen, praise God. मुझ पर तरस खा, जो प्रार्थना है वो इस संसार में ही हम परमेश्वर से कर सकते हैं। वहां पहुंचने के बाद में हम जितना भी बोले कि हैव पिटी ऑन मी, एक और चांस दो, वहां पर चांस नहीं है, वहां पर सेकंड चांस नहीं है, वहां पर ग्रेस नहीं है। ग्रेस थ्रू जीसस इज ऑन दिस अर्थ। अभी ये समय है, टुडे इज द डे फॉर द सैल्वेशन। डू नॉट हार्डन योर हार्ट। आज मेरे इस वचन को जो सुन रहे हैं, आप यदि परमेश्वर का वचन सुने हैं, गॉस्पेल सुने हैं, फिर भी उस गॉस्पेल के अनुसार से स्वर्ग राज्य के उस सिद्धांतों में आने के लिए आप तैयार नहीं हो पा रहे हैं, आज एक अवसर परमेश्वर दे रहा है कि आप जहां पर भी है वहां पर आप एक प्रेयर रिक्वेस्ट रख सकते हैं। लॉर्ड हैव पिटी ऑन मी, मुझ पर तरस खा, मैं पापी हूं, मैंने गलत किया है, मुझ पर तरस खा। आई डोंट वांट टू मिस दैट इटर्निटी, आई वांट टू बी विथ यू फॉरएवर। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। तो ये सीख हमें सीखना है। Why this story? The story is to remind that prayer
has to be done in this earth. The prayers जो आज हम करते हैं परमेश्वर के सामने में, वो वेस्ट नहीं है। हालेलुया। वो प्रार्थना परमेश्वर सुन करके हमें तरस देगा। इस संसार में हमें तरस मिलेगा, वहां पर तरस नहीं मिलेगा। We have mercy here. So this is the time, जब हमें जीवन है, जब हमारे नाक में वो सांस है, तो उसी समय पर हमें वो प्रार्थना उस जीवन देने वाला परमेश्वर के सामने करना है। ये परमेश्वर का वचन आज सुबह हमसे बातें करना चाहता है। हालेलुया। क्या बोल रहा है? अब्राहम को जरा भेजे, एक बूंद पानी चाहिए। हालेलुया। राइट, नरक में पानी नहीं है, वहां पर अग्नि की अवस्था है, प्यास रहेगा, मरने वाला कीड़ा जो है अग्नि में मरेगा नहीं, वो कीड़ा सताते रहेगा। ये सारे आयतें परमेश्वर का वचन में है। किसी और दिन में उस जब प्रचार करूंगा तो वो सारे वाक्यों को, वो सारे अध्यायों को मैं लेके आऊंगा, लेकिन आज समय नहीं है। मैं ये बोल करके आगे बढ़ता हूं। वहां पर वो तरस रहा है, ही इज इन पेन। प्रेज गॉड। उसके बाद उसकी 25वीं आयत पर अब्राहम कुछ उत्तर दे रहा है। सन, रिमेंबर दैट इन योर लाइफ टाइम यू रिसीव्ड योर गुड थिंग्स व्हाइल लाजरस रिसीव्ड द बैड थिंग्स। ओके, बट नाउ ही इज कंफर्टेड हियर एंड यू आर इन एगनी। राइट, परमेश्वर जब हमें गुड लाइफ देता है, इट इज नॉट ओनली फॉर अस, इट इज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर हमें जो अच्छा जीवन दिया है, इस जीवन से हम परमेश्वर की राज्य के लिए उपयोग होने के लिए जीवन दिया है। प्रेज गॉड। अब्राहम को परमेश्वर जन बुलाया, अब्राहम को बोलता है, आई विल मेक यू ए ब्लेसिंग एंड यू विल बी ए ब्लेसिंग टू नेशंस। आमेन, प्रेज गॉड। परमेश्वर जो ब्लेसिंग्स हमें देता है परमेश्वर की राज्य के लिए, परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए, वो एक चैनल बनने के लिए, ब्लेसिंग की चाहे। हमें परमेश्वर ने टैलेंट्स दिया है, हमें परमेश्वर ने स्किल्स दिया है, हमें परमेश्वर ने जीने के लिए सब कुछ दिया है, धन दिया है, दौलत दिया है। ये सब कुछ जब परमेश्वर हमें दिया है, इट इज फॉर गॉड्स ग्लोरी। Amen. With God consciousness, वो blessings को हमें लेकर जाना है। ये वचन आज हमें सिखाना चाहता है। अब्राहम वहां पर उस हेवनली realm में वो इस प्रकार से बात कर रहा है, एक कॉन्वर्सेशन चल रहा है। जीसस वो कॉन्वर्सेशन को अच्छी तरीके से लोगों को बता रहा है। And beside all these things between you and us there is a great chasm. एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो हमें सेपरेट कर चुका है। तो ना तो हम यहां से वहां जा सकते हैं, वहां से हम यहां आ सकते हैं। जब पहला प्रेयर रिक्वेस्ट पूरा नहीं हुआ, वो 27वीं आयत में एक दूसरा प्रेयर रिक्वेस्ट, उसे समझ में आ गया, नो जो हैव पिटी ऑन मी, अभी यहां प्रेयर करके कोई फायदा नहीं है। नाउ ही पुट्स अनदर प्रेयर रिक्वेस्ट। ही आंसर्ड, देन आई बेग यू फादर अब्राहम, सेंड लाजरस टू माय फैमिली, फॉर आई हैव 5 brothers, let him warn them so that they will not also come to this place of torment. Praise God. आमीन। अभी उसे पता चला कि जो जीवन जो धरती पर वो जी रहा था वो सही जीवन नहीं था। गॉड कॉन्शियस होकर के वो जिया नहीं। जो उसको मन चाहा, जो उसका फ्लैश चाहा, वो मोरालिटी को कीप अप नहीं किया। किसी भी तरह जो भी करप्शन करना था वो सब कुछ किया अपने लाइफ में, इस फिजिकल लाइफ को वेल मेंटेन करने के लिए। लेकिन अभी उसको बोध आया। अब बोध आकर के अभी वहां से एक और प्रेयर रिक्वेस्ट, मेरा 5 भाई नीचे है, मेरा 5 भाई अभी धरती पर है, वो भी यहीं पर आएंगे, उसे पूरा पता है। He is 100% श्योर दैट ये 5 भाई भी कहां आएंगे, इस टॉर्मेंट की जगह पर आएंगे। अभी उसके लिए वो मध्यस्थता बनना चाहता है, प्रेयर करना चाहता है कि लाजरस को तू भेज एक बार फिर पुनर्जीवन दे उसको, ताकि वो जाएगा और वो बताएगा और मेरे भाई लोग क्या होंगे, उनके मन फिर जाएंगे, वो सही रास्ते पर चलने लगेंगे। तो अब्राहम क्या बोलता है? अब्राहम बोलता है, अब्राहम रिप्लाइड, दे हैव मोसेस एंड प्रॉफिट्स, लेट देम लिसन टू देम। उनके हाथ में क्या है? मोसेस है। उनके हाथ में क्या है? प्रॉफिट्स है। पेंटाटुक 5 किताब है, राइट? और उसके साथ में प्रॉफिट्स की सारी वाणियां जो परमेश्वर की, thus says the Lord, thus says the Lord, उसका सारा किताब स्क्रॉल्स किसके हाथ में है? तुम्हारे भाई के हाथ में है। आज सुबह के समय पर जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम सुन रहे हैं, परमेश्वर ने आज हमें 66 किताब आज हमारे हाथों में दिया है। प्रेज गॉड, दिस बाइबल गॉड हैज गिवन टू अस। ये बाइबल से ही हम इटर्निटी प्राप्त कर सकते हैं इन अनदर वे। व्हाट अब्राहम इज टेलिंग देयर, मोसेस है उनके पास में, प्रॉफिट्स है। मोसेस जब जिया तो परमेश्वर ने जो भी कमांड्स दिया तो सब कुछ बता दिया गया, उल्लेख करके रखा है, उनके हाथ में है। Praise God. और प्रॉफिट्स, thus says the Lord, हर एक इंटरवल्स में,
तो एक प्रॉफिट का अंत होता, दूसरा प्रॉफिट खड़ा होकर के उल्लेख कर रहा है, thus says the Lord, thus says the Lord। ये सारी बातें उनके पास में हैं, वो पढ़े, राइट, उससे वो मन फिराव कर सकते हैं, उनको नकारे नहीं। जब यदि उनको नकार दिया है तो अब्राहम यदि लाजरस को वापस भेजता है तो ये लाजरस को भी सुनकर कि ये मानने वाले नहीं है। नो फादर अब्राहम, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. But Abraham said, if they do not listen to Moses and prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead, right? यदि कोई मरे हुओं में से जी उठ के जाने से भी वो नहीं सुनेंगे। तो अद्भुतों को देख करके सारे लोग अनंत जीवन में नहीं पहुंचेंगे। अनदर वे ऑफ टेलिंग, राइट। आज चिन्ह और चमत्कार को केवल देख करके यदि परमेश्वर में आ रहे हैं, केवल चिन्ह, कल उनके जीवन में यदि चिन्ह और चमत्कार नहीं हुआ तो वापस चले जाएंगे, राइट। इट इज नॉट दैट मिरेकल्स नहीं है जो परमेश्वर के पास में लेके आता है। इट इज दैट गॉड हैज सेव्ड मी फ्रॉम द सिंस। परमेश्वर ने मेरे पापों से मुझे मुक्त किया है, और वो पाप से मुक्ति के कारण से परमेश्वर मेरे लिए एक भवन बनाया हुआ है, और उस अनंतता में मुझे जाना है। ये कॉन्शियसनेस व्यक्ति के अंदर में रहेगा, तभी, राइट, तभी वो इटर्निटी में पहुंच पाएंगे। आज हम देखते हैं, जब हम क्रिश्चियन वर्ल्ड में जब देखते हैं, अनेक लोग मिरेकल्स के लिए, अनेक लोग धन के लिए, अनेक लोग इस फिजिकल लाइफ के लिए परमेश्वर के पास में आते हैं, लेकिन उनके जीवन में कल यदि चमत्कार नहीं होता है, फिर दोबारा मीटिंग्स में नहीं आएंगे, वो अटेंड नहीं करेंगे। नो, दैट्स रॉन्ग। इट इज व्हाट नो अब्राहम इज टॉकिंग अबाउट। अब्राहम बोल रहा है कि उनके पास में ऑलरेडी मोसेस है, ऑलरेडी प्रॉफिट्स का वचन उनके पास में दिया गया है। अभी यहां से एक अद्भुत विषय के तौर पर लाजरस जाता है, फिर भी वो विश्वास नहीं करेंगे। When you read John chapter 12, मेरे पास समय नहीं है, John chapter 12 जब पढ़ेंगे, वहां पर लाजरस जो जिंदा किया, प्रभु यीशु मसीह ने वापस जिंदा किया, वहां पर लिखा गया है, people were trying to again kill that Lazarus, right? You can read chapter 12 and understand that। जब एक बहुत बड़ा पार्टी वहां पर रखा गया, जीसस को बुलाया गया, वहां के जो फैरिसीज थे, जो टीचर्स ऑफ द लॉ थे, they were trying to kill, they were planning to kill Lazarus। जी उठा लाजरस जो एक अद्भुत विषय था, उसको वो मार देना चाहते थे, क्योंकि उसके कारण से अनेक लोग यीशु के पीछे हो रहे थे, राइट। सो वी शुड अंडरस्टैंड, इट्स नॉट दैट मिरेकल। एक मिरेकल को देख करके नहीं, लेकिन मिरेकल एक साइन बोर्ड है जो क्रूस के पास में लेके आता है, जहां पर हम परमेश्वर के सामने बोलते हैं कि आई एम सिनर लॉर्ड, सेव मी लॉर्ड, हैव पिटी ऑन मी, आई वांट टू बी योर चाइल्ड, रिसीव मी लॉर्ड, यू आर माय किंग ऑफ द लाइफ, यू आर माय सेवियर। जब हम पूरे हृदय के साथ में, पूरे मन के साथ मुख से कबूल करते हैं, वी हैव दैट सब्सक्रिप्शन इन इटर्निटी। प्रेज गॉड, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, राइट। हम आज सुबह के समय पर जब हम इस परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं, इस पैराबल को जब हम सुन रहे हैं, प्रेज गॉड, हमारी उस अनंतता को हम सिक्योर कर रहे हैं, हालेलुया, राइट, प्रेज गॉड, आमेन। इस जीवन में, चाहे हमारे जीवन में स्ट्रगल्स क्यों ना हो, चाहे हमारे जीवन में दुख क्यों ना हो, चाहे हमारे जीवन में तंगी क्यों ना हो, इस सब के मध्य में हम इटर्निटी को हम मिस आउट ना करें। प्रेज गॉड, लाजरस, उसके जीवन में दुख था, कष्ट था, पेन था, स्ट्रगल था, बिलोंगिंगनेस नहीं था, रिकॉग्निशन नहीं था, सभी लोग थुक थुक करते थे, उसको फ्रेंड्स नहीं था, कुत्ते उसका फ्रेंड्स था, एक इंसान उसका फ्रेंडशिप नहीं दिया, कुत्ते आते थे उसके पास में मिलने के लिए, चाहे वो भी बात हो, केवल कुत्ते लोग उसके पास मिलने के लिए आते थे। ऐसी एक व्यक्ति, लेकिन वो इटर्निटी को मिस आउट नहीं किया। We have to understand the concept this morning. Hallelujah. One life which God has given to us, we have to secure our eternity. Hallelujah. एक लाइफ ही है, यहां पर हम अपनी इटर्निटी को सिक्योर कर सकते हैं। यदि हमारा सांस आज रुक जाता है, उसके बाद में there is no more prayer for the pity. Hallelujah. हमारे ऊपर तरस खाने के लिए फिर हम प्रार्थना हम नहीं कर सकते हैं। Hallelujah. How blessed we are that God is enabling us
to look unto him, to pray unto him and say that, Lord, have mercy on me. Praise God. Hallelujah. Now this morning when I am studying this and I am proclaiming from this passage, no, I am including myself. I want to pray daily that, Lord, have pity on me. Have mercy on me. Praise God. एक यही प्रार्थना हमें निरंतर करना है. Hallelujah. We have to humble ourselves before God because God said that you have an eternity. Hallelujah. Praise God. हम दुखी ना हुए इस संसार में यदि हमें कुछ नहीं मिले तो. हालेलुया. हम दुखी ना हुए यदि परमेश्वर हमें सब कुछ भी दिया है तो ये जो परमेश्वर ने हमें जो सब कुछ दिया है, परमेश्वर उसमें हमें परमेश्वर की आशीष के लिए हम वो इस्तेमाल करने पाए. प्रेज गॉड. हालेलुया. प्रेज गॉड. मैं 2 मिनट लेकर के मेरे संदेश को मैं विराम डालना चाहता हूं. एक बार फिर हम इस बातों को हम देखें. द पैराबल वाज नॉट इंटेंडेड टू tell us what heaven and hell are like. It was meant to challenge Jesus' disciples to be responsible stewards of material resources. It will speak to us today. There are millions around us who live in abject poverty with a status little higher than that of animals in the street. Yet we often carry on living as if everything is all right and tend to identify with the rich rather than with the poor. We need to recognize that no one should lack such basic things as food, clothing, housing, healthcare, physical security, and the means to earn a living. Praise God. हम ये एक जिम्मेदारी परमेश्वर कलीसिया को दिया है, चर्च को दिया है कि यदि कोई भी इसमें लैक कर रहा है, फूड में, क्लोथिंग में, हाउसिंग में, हेल्थ केयर में, फिजिकल सिक्योरिटी में, एंड द मीन्स टू अर्न अ लिविंग, द चर्च has to fulfill that. That's the responsibility. We have to care for the poor and the needy, and praise God that we are able to do it. Let us continue to do that. Just as a reminder, I want to tell, and I was to thank the church for your all that social charity work that you are interested to do it. Oh, let us not stop doing that. This is what God wants from each and every one of us from this parable. Then Jesus challenges us to stop living like that rich man. Richness is not bad, but living like this rich man is wrong. Right? Richness is not wrong. Richness is a blessing that God gives. And to pay attention to what scripture says about caring for the poor. Right? When the richness God has given, we have to be very much careful what the scripture is talking about, the life that we have to live. A correct reading of scripture will give us eyes to see the needs of the poor and to respond to them, rather than neglecting those who are victims of poverty and sickness. Praise God. जो poverty में है, sickness में है, उसे neglect नहीं करना है, उसे हमें love way से, हमें वो प्रेम के साथ में उन्हें एक्सेप्ट करना है हमारे लाइफ में, उनके लिए हमें उनकी नीड को पूरा करना है. Jesus calls us to a simpler lifestyle and to authentic social action that addresses a suffering world. ये हमें नहीं भूलना है. When we as a faith community, church community, there is a suffering world outside, and we have to participate in that society. Now that action, we have to perform it. This is what God is speaking to us. If we refuse to share our bread with the poor, we invite God's judgment. हमें परमेश्वर ने जो ब्रेड दिया है, राइट, वो ब्रेड को हम उसे पुअर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए परमेश्वर ने हमें ब्रेड दिया है. Praise God. I want to encourage the church, the good work which we all have started, hallelujah, especially all the believers, praise God, who have started this, continue to do that, and that is where we can keep that assurance that there is an eternity. Hallelujah. John chapter 14 में Jesus बोलता है, I am going to prepare a place for you. मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए एक भवन को तैयार करने के लिए. जब वो भवन पूरा तैयार होगा, मैं वापस आ रहा हूं. प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहा है. आमीन. उस इटर्नल ब्लिस में हमेशा उसके साथ रहने के लिए, परमेश्वर हमें ले जाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह वो जल्द आ रहा है. With that consciousness in mind, with that thinking that yes, really eternity matters.
वो हमारे मन के अंदर उस कॉन्शियसनेस को रखते हुए हमारे मसीह जीवन को हम आगे बढ़ाए। परमेश्वर हम सभियों को आशीष दे। हालेलुया।